students. Today we'll discuss about the consequence of deficient aggregate demand. Okay, means जब aggregate demand, planned aggregate demand is less than the full employment aggregate demand. Okay, and planned aggregate demand is represented by ADP, and full employment aggregate demand is represented by ADF. Okay, so when ADP is less than ADF, that means when the people are planning to demand or planning to spend less than what is required for attaining full employment equilibrium. Okay, full employment equilibrium अचीव करने के लिए जितनी डिमांड का लेवल होना चाहिए था, ठीक है, उतना नहीं है. पीपल आर प्लानिंग टू स्पेंड लेस. ठीक है, जैसे हम ग्राफ में ऐसे देखते थे, दिस इज AS कर्व, दिस इज ADP and this is ADS. ठीक है, this is the aggregate demand which is required to maintain full employment. ठीक है, full employment के लिए जितनी aggregate demand होनी चाहिए, that means इतनी demand हो कि जो resources हमारे पास available है उनको use कर लिया जाए production के लिए. ठीक है, so that is ADS, full employment aggregate demand. This is the demand which the people wish to make. ठीक है, ये वो demand का level है जो लोग करना चाहते हैं. ठीक है, so when AD and AS are equal, full employment aggregate demand and full employment aggregate supply is equal. This is the aggregate supply, this is the full employment aggregate demand. At the point where they will be equal, this point will be known as full employment equilibrium. Okay, ये full employment equilibrium है. ठीक है, the point where ADP and AS are equal, ठीक है, planned aggregate demand will become equal to aggregate supply. This point will be known as underemployment equilibrium. ठीक है, because equilibrium तो है, as AS and AD are equal, इस point पे इसको मैं point A नाम देता हूँ. If it is point A, ठीक है, at point A AD and AS are equal, aggregate supply and aggregate demand equal तो है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे full employment नहीं है. ठीक है, that means some resources will remain unutilized or underutilized. कुछ resources यहाँ पे underutilized रहेंगे. ठीक है, so that's why we have discussed or we have said that it is underemployment equilibrium. Equilibrium जो है because AD और AS equal है, लेकिन full employment नहीं है, कुछ resources unutilized है. ठीक है, that's why we have called it as underemployment equilibrium. And this will be full employment equilibrium. इसको हम नाम देते हैं point E. This is point E. Okay, so what is the consequence of deficient aggregate demand? When the aggregate demand is, planned aggregate demand is less than the full employment aggregate demand, there will be underemployment equilibrium. That means some resources will remain unutilized. कुछ resources unutilized रह जाएंगे. ठीक है, तो equilibrium तो होगा क्योंकि AD और AS equal है यहाँ पे point A पे. ठीक है, लेकिन वहाँ पे resources fully utilized नहीं है. That's why we have discussed it as, we have said it as underemployment equilibrium. Okay, next consequence is deflationary gap. The next consequence that will arise due to deficient demand will be deflationary gap. Okay, what is deflation? As we have discussed, inflation and deflation are the economic cycles of business cycles. These are the stages of business cycles. ये business cycles की stages होती हैं. ठीक है, deflation that means when the demand is less. ओके, जब डिमांड की कमी होती है मार्केट में, मंदी जिसको हम कहते हैं, दैट इज डिफ्लेशन. ओके, सो डिफ्लेशनरी गैप अराइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड. जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है. मंदी है मार्केट में, लोग कम खरीदना चाहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली डिफ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, सो डिफ्लेशनरी गैप विल बी इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड. डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड दोनों एक ही चीज है. ठीक है, तो इनका जब मेजरमेंट करते हैं, डिफ्लेशनरी गैप को जब हम मेजर करते हैं, ओके, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी गैप अराइजेस व्हेन एग्रीगेट प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड. दैट गैप बिटवीन ADF एंड ADP, ADF और ADP के बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप. मंदी है, कमी है मांग की. ठीक है, हाउ डू वी मेजर डिफ्लेशनरी गैप? Just as the same we have measured the deficient demand. जिस तरीके से deficient demand को हमने measure किया, वैसे ही deflationary gap को भी हम measure करते हैं. Okay, so how did we measure the deficient demand? Deficient demand
डिमांड को कैसे मेजर किया था? डेफिशिएंट डिमांड इज द वर्टिकल डिफरेंस, डेफिशिएंट डिमांड इज द वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडीएफ एंड एडीपी। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडीएफ एंड एडीपी। ओके, तो डिफ्लेशनरी गैप में क्या हो जाएगा? द वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडीएफ एंड एडीपी। ओके, डिफ्लेशनरी गैप में वर्टिकल डिफरेंस होगा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का वर्टिकल डिफरेंस, इन दोनों के बीच जो गैप है उसे ही हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओके, so second consequence that will arise due to deficient demand, that will be deflationary gap, and deflationary gap arises due to shortfall of planned aggregate demand than full employment aggregate demand। जो planned aggregate demand है वो full employment aggregate demand से कम हो जाती है, तब हमारा जो gap arise होता है उसे हम deflationary gap कहते हैं। इसमें demand कम होती है, ठीक है, actually planned demand कम है, so that means people are demanding less in the market। Okay, next is next consequence is undesired stock। As we have discussed that in case of deficient demand, when demand planned aggregate demand is less, okay, हमने deficient demand को कैसे पढ़ा है? Deficient demand is ADP is less than AM, when AD is less than planned aggregate demand is less than planned aggregate supply, that is deficient demand। okay, वहाँ पे उसको हमने deficient demand कहा है। और इस केस में क्या है? प्रोड्यूसर्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं बट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय लेस। तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ड्यू टू दिस डिफरेंस द प्रॉब्लम अराइजेज एंड दिस प्रॉब्लम इज अनसोल्ड स्टॉक। मार्केट में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहेगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं बट कंज्यूमर उतना जितना प्रोड्यूस किया गया है उतना खरीदना नहीं चाहते हैं, तो कुछ स्टॉक या कुछ गुड्स अभी बिना बिकी पड़ी रह जाएंगी। तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आ जाता है which may arise due to deficient demand, that is unsold stock, because ADP is less than ASP, planned aggregate demand is less than planned aggregate supply। producers तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं but consumers are not willing to buy that much amount or quantity of goods। ओके, उतना खरीदना नहीं चाहते हैं तो कुछ अमाउंट बची रह जाएगी जिसको हमने कहा अनसोल्ड स्टॉक। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि लॉस नहीं है, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, टू टर्म्स आर देयर, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स प्रॉफिट का घाटा हुआ है। ठीक है, लॉस अल्टीमेटली नहीं हुआ, प्रॉफिट का घाटा हुआ है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, वो हम नहीं अर्न कर पाए। ओके, जितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाते हैं या कर सकते थे उतना प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाए हैं, तो कुछ प्रोपोर्शन और कुछ पोर्शन, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू और वी हैड टू फॉरगो और सैक्रिफाइस। प्रॉफिट का कोई प्रोपोर्शन या कोई पोर्शन हमें छोड़ना पड़ा या हमारा प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, तो उसे हमने कहा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा कैसे हुआ? सी, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है बिना बिका। ठीक है, अब क्या होगा जब अनसोल्ड स्टॉक है तो उस स्टॉक को क्लियर ऑफ करने के लिए, स्टॉक को क्लियर ऑफ करने के लिए प्रोड्यूसर्स और मार्केटर्स विल रिड्यूस और कट डाउन द प्राइस। वो प्राइसेस को कम कर देंगे सो दैट द अनसोल्ड स्टॉक दे विल बी एबल और दे विल एबल टू सेल ऑफ। ठीक है, ताकि वो कम प्राइसेस में उस प्रोडक्ट को या अपने अनसोल्ड स्टॉक को बेच पाए। ठीक है, तो प्राइसेस को कट डाउन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, सो प्राइसेस कम हो जाएंगे, सो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। ओके, तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट अराइजेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों हुआ? ड्यू टू अनसोल्ड स्टॉक, ड्यू टू अनसोल्ड स्टॉक देयर विल बी प्राइस कट। अनसोल्ड स्टॉक की वजह से प्राइस कट हो जाएंगे, प्राइसेस रिड्यूस कर दिए जाएंगे, एज अ रिजल्ट रिडक्शन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स के। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ज़्यादा करके रखी है लेकिन उतना डिमांड नहीं किया गया है, अनसोल्ड स्टॉक रहेगा। अब उस स्टॉक को क्लियर ऑफ करने के लिए प्रोड्यूसर्स प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस रिड्यूस करते ही उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट वो अर्न कर सकते थे नाउ दे आर नॉट एबल टू अर्न, वो उनकी पॉकेट में अब नहीं जाएगा। ठीक है,
कुछ हिस्से का लॉस उठाना पड़ा, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के जो परिणाम है, रिजल्ट है, ये है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड क्या है? तो जैसे हमने डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्सेस डिमांड होती है। डेफिशिएंट डिमांड में प्लान्ड एडी इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ओके। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, whereas in excess demand planned aggregate demand will be higher than full employment aggregate demand. That means इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी डिमांड की जरूरत है, लोग उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, दैट विल बी एक्सेस डिमांड, ओके। जितनी डिमांड की रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए, उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, ओके, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड, ओके। ओके, अब एक्सेस तभी होगी ना जब लोग ज्यादा डिमांड करना चाहते हैं इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। दैट मीन्स जितने रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, उन सभी को यूज करके जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, उससे भी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा है डिमांड का लेवल, तभी तो उस गैप को हम क्या कह देंगे? एक्सेस डिमांड। डिमांड इज एक्सेस, ओके, ज्यादा है डिमांड, ओके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, when does it arise? In this situation, when aggregate demand is more than or higher than aggregate supply. जब aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा होती है, तब excess demand arise होती है, ठीक है। अब ग्राफिकली इसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ओके। मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ओके। So to measure the excess demand, we will use the graph OX, OY, AS curve, AD, again AD. We have two types of aggregate demand. One is aggregate demand, planned aggregate demand, and the other one is the full employment aggregate demand. वो डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो दो तरह की एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या है? मेजरमेंट, दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड विल बी हायर देन और ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, उनको यूज करके जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोग उससे भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, दैट इज एक्सेस डिमांड, ओके। सो here will be, this is ADP and this is ADF. फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए डिमांड का लेवल इतना होना चाहिए, बट द पीपल हैव प्लान दिस मच लेवल ऑफ डिमांड, लेकिन लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड एक्सेस में है, ठीक है। दिस विल बी द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे AS एंड ADF फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। उससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जो वर्टिकल डिफरेंस है इनका, ADP और ADF का, ठीक है। देखो जो मेजरमेंट है, वर्टिकल डिफरेंस जो हम मेजर करते हैं, वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ही मेजर होता है। द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ही मेजर होता है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, वहीं से हम वर्टिकल डिफरेंस लेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था? ADF ऊपर लिया था एंड ADP नीचे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आगे चला गया था, तो यहाँ से हमने वर्टिकली मेजर किया, ओके। तो उसी पॉइंट से मेजर करेंगे जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, ओके। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ है? जहाँ पे AF और ADF एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब इसको एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट को जो हमने एक्सटेंड किया ADP तक, तो ये पॉइंट मिला हमारे पास सपोज A, ठीक है। तो द डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, जिसको हमने नाम दिया EA, दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस ऑफ ADP एंड ADF। ये ADP और ADF का वर्टिकल डिफरेंस है EA, जिसको हमने नाम दिया EA, दैट इज एक्सेस डिमांड। ये EA क्या है? ये EA ही हमारी एक्सेस डिमांड है। EA इज एक्सेस डिमांड। डिमांड कितनी ज्यादा है? EA। हमने इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, और ना ही जरूरत है,
हम सिर्फ पॉइंट्स को नाम देंगे, ठीक है। और एक्सेस डिमांड क्या है, ई ए इज द एक्सेस डिमांड, दैट इज द वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडीपी एंड एडीएम, ठीक है। दिस इज एक्सेस डिमांड, क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या हैं? तो जो कॉजेज हमने डेफिशिएंट डिमांड के पढ़े थे, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ एडी देखेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं, द कंपोनेंट्स व्हिच एडी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सो इनको हमने डिफरेंट मॉडल्स में डिस्कस किया था, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, ओके। तो कंपोनेंट्स में हम फर्स्ट देखते हैं 2 सेक्टर मॉडल, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ एडी, 2 सेक्टर मॉडल में कंपोनेंट्स ऑफ एडी है सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों मिलकर क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड बनती है। कंज्यूमर्स भी डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी डिमांड करते हैं। कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडी को हम एक्सपेंडिचर के टर्म्स में ही मेजर करते हैं, ठीक है। So in the form of consumption expenditure, consumers make demand, and in the form of investment expenditure, producers make demand or make demand. Okay. So दोनों को जब हम combine कर देते हैं, it comprises or it makes the aggregate demand. इससे हमारी aggregate demand बन जाती है. Okay. So the causes of excess AD. अब हम excess AD के causes पढ़ रहे हैं. The causes of एक्सेस एडी, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के कॉजेज हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो डिमांड ज़्यादा कब होगी, जब एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए जाएंगे, कंज्यूमर्स भी एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे और प्रोड्यूसर्स भी एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, टोटल एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्हेन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, कंज्यूमर्स डिमांड मोर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ओके। कंज्यूमर्स फिनिश्ड गुड्स की डिमांड कुछ ज़्यादा करते हैं, तो हमारा डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कॉज क्या है, इंक्रीज इन आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं। इनको मिला के ही एग्रीगेट डिमांड बनती है 2 सेक्टर मॉडल में, ओके। सी प्लस आई इज इक्वल टू ए डी। नाउ इन 3 सेक्टर मॉडल तीसरा कंपोनेंट आ जाता है गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर भी डिमांड करती है। तो गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा दे, तो भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग और व्हेन देयर इंक्रीज इन जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम जी से, ठीक है, हम सी प्लस आई प्लस जी तीनों ही 3 सेक्टर मॉडल में अगर ये तीनों इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे एंड एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी अगर बढ़ा दे, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, अगर उनको ज़्यादा बनाती है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर के रूप में वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, तो वहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 4 सेक्टर मॉडल में क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ऐसे हम नेट एक्सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोनों का अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर एक्सपोर्ट्स के क्या इफेक्ट पड़ते हैं और इम्पोर्ट्स के क्या, जब ये चेंज होते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से अगर इम्पोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड अगर इम्पोर्ट्स डिक्रीज होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, कॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा है, तो एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट्स में इंक्रीज हो गई। तो डिमांड इंक्रीज हो गई ना फॉरेन मार्केट्स में, और किन प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, तो दैट मीन्स एडी इंक्रीज हो जाएगा जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या दिखा रहे हैं, डिमांड ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की फॉरेन मार्केट की डिमांड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड कब होगी, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स,
जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, उसकी मार्केट फॉरेन मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो भी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में चली जाएगी। वेयर एज इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट डिक्रीज हो जाते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स मार्केट में कम अवेलेबल होंगी, अगर इम्पोर्टेड गुड्स मार्केट में कम अवेलेबल होंगी तो पीपल वुड शिफ्ट ऑन टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। जब इम्पोर्टेड गुड्स कम आ रही है तो सब्सिट्यूट क्या है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो दैट विल रिजल्ट इन एक्सेस एडी। तो इम्पोर्ट्स कम होंगे तब एडी एक्सेस में होगा। तो डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स विल रिजल्ट इन टू एक्सेस एडी। ठीक है, अगर इम्पोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा चली जाएगी, सरप्लस में चली जाएगी। नेक्स्ट एक और पॉइंट है टैक्सेस। अगर टैक्स रेट कम कर दी जाती है, इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेस, यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, या फिर हम डायरेक्ट टैक्सेस की ही अगर बात करें तो किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो अगर इंडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इंडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं या डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जीएसटी अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, या उसी अमाउंट में, उसी एक्सपेंडिचर में पहले के मुकाबले आप ज़्यादा खरीद पाएंगे। पहले प्राइस ज़्यादा था तो 100 रुपये में कम चीज़ें खरीदते थे, अब प्राइस कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। ओके, इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस अगर रिड्यूस कर दिए जाए, लोगों की इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है अगर वो रिड्यूस कर दिया जाए, तो डिस्पोजेबल इनकम जो है, जो खर्च करने योग्य आय है, जो लोगों के हाथों में बची रह जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स के रूप में अब उन्हें कम पेमेंट करनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों की जो परचेजिंग पावर एंड डिस्पोजेबल इनकम है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेस एडी किसकी वजह से होगा, रिडक्शन इन टैक्सेस, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। So if there are reduction in taxes, either direct or indirect, ठीक है, तो लोगों की परचेजिंग पावर एंड डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स अगर रिड्यूस होते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, द इनकम विच इज विद द पीपल विच इज इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर टू स्पेंड, वो इनकम डिस्पोजेबल इनकम होती है जो लोगों के हाथ में बची हुई है खर्च करने के लिए, आफ्टर पेमेंट और मेकिंग कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट जो कि टैक्सेस जिनको हम कहते हैं, उनको करने के बाद जो बची हुई इनकम है लोगों के हाथ में, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इंडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी अगर वो कम कर दिया जाए तो गुड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द कॉजेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी। अगर डिमांड या एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में चली जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या रिजल्ट मिलेंगे देखने को ड्यू टू एक्सेस एडी। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हमने डेफिशिएंट डिमांड के देखे थे उसके ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो गया था। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो गया था ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशन का ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा, तो इन्फ्लेशनरी गैप को भी हम ग्राफिकली ही मेजर करते हैं, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, दिस इज ए एस कर्व और वाई कर्व, दिस इज ए डी, अगेन ए डी। एक्सेस डिमांड है तो एडीपी विल बी हायर देन और विल बी हायर देन एडीएफ। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, राइट, एडीपी वुड बी हायर देन एडीएफ। ये एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो मैं कहूँ एक्सेस डिमांड ऐसे मेजर करते हैं, दिस इज पॉइंट ई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, और उससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे बिकॉज एडीएफ इज इक्वल टू एएस। ओके, मेजर कैसे करेंगे, वर्टिकल डिफरेंस। ओके, वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडीपी एंड एडीएफ। एडीपी और एडीएफ का जो वर्टिकल डिफरेंस है, पहले भी पता था मेजरमेंट कहाँ से हुआ, किस पॉइंट से, ई पॉइंट से, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से मेजर करेंगे हम। ठीक है, so that means excess demand is equal to inflationary gap. एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये जो गैप होगा ई ए, यही एक्सेस डिमांड है, ई ए ही एक्सेस डिमांड है,
और EA ही इन्फ्लेशनरी गैप है, ओके, एंड दिस अराइजेज ड्यू टू excess demand when planned aggregate demand is greater than full employment aggregate demand. Inflationary gap arises in the economy. Inflationary gap arise हुआ है क्यों? तो ये प्रॉब्लम कौन सी अराइज हो गई है? यहाँ पे अनफुलफिल्ड डिमांड है. Planned aggregate demand is greater than full employment aggregate demand. People are demanding more than what is required for full employment. इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी लेवल ऑफ डिमांड होनी चाहिए लोग उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे यूज़ कर लिए जाए, तो उनको यूज़ करके जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है. इक्विलिब्रियम होगा AD और AF, ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जितने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे यूज़ करके प्रोडक्शन हो गया, लेकिन हम डिमांड उससे ज़्यादा कर रहे हैं, A पे कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कुछ लोगों की डिमांड या कुछ नीड्स अनफुलफिल्ड रह जाएंगे, ठीक है. तो ड्यू टू एक्सेस डिमांड अनफुलफिल्ड, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या अराइज हो जाएगा? एक तो इन्फ्लेशनरी क्या अराइज हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा अनफुलफिल्ड डिमांड. Unfulfilled demand, next consequence. Unfulfilled demand, that means people are demanding more than what is required to demand for full employment. Okay, full employment के लिए जितनी डिमांड की जरूरत थी उससे ज़्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कुछ लोगों की, क्योंकि हम उनकी तो डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे यूज़ कर लिए जाएँ. ओके, अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया जाए, क्योंकि कहा कि वो तो साइड में चलेगी ही चलेगी, एवरग्रीन है, हमेशा चलती रहेगी, ठीक है. उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ओके. तो उसी कंडीशन को हम लेके चलें तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है अगर उनको यूज़ कर दिया जाए तो हम आउटपुट इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लोग डिमांड इतनी कर रहे हैं एक ही, ठीक है. तो कुछ डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएंगी. अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी तो प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है. तो प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग अप, ठीक है. प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगी, महंगाई अराइज हो जाएगी, ठीक है. तो इससे हमने कहा दो कॉन्सिक्वेंसेज अनफुलफिल्ड डिमांड की फॉर्म में, एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो गया, ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्टैटिक GDP. एक्सेस डिमांड का एक कॉन्सिक्वेंस है. नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है स्टैटिक GDP. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. स्टैटिक GDP क्या कहता है? स्टैटिक GDP कहता है इवन इफ डिमांड इंक्रीजेस, ओके, इवन इफ डिमांड इंक्रीजेस, ADP ज़्यादा है, दिस इज द डिमांड विच द पीपल विश टू मेक. ये वो डिमांड है जो लोग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि इवन इफ द डिमांड राइजेस और इंक्रीजेस द GDP विल नॉट इंक्रीज, और द GDP डज नॉट इंक्रीज. ओके, GDP इंक्रीज नहीं होती है. रीजन भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड हम जाएंगे. एक्सेस डिमांड यही है ना, ये ही एक्सेस डिमांड. हम ई पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते इक्विलिब्रियम में, ठीक है. क्योंकि इक्विलिब्रियम ई पॉइंट क्या दिखा रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जैसे मीन जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सबको यूज करके इतना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर चुके हैं या कर सकते हैं, ठीक है. तो GDP हमारा यही रहेगा, ओके. सो अगर डिमांड फर्दर राइज होती है तो GDP इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है. ये जो ADP है ये क्या है? बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है. जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के बाद भी डिमांड बढ़ती जा रही है. प्रोडक्शन हम इतना कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिमांड अनफुलफिल्ड है, ठीक है. तो ADP, दैट मीन्स ADP एक्सेस में है, लेकिन फिर भी हम GDP या प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन यूटिलाइज्ड और यूज, ठीक है. फुली सभी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ कर लिया है. तो अब अगर डिमांड बढ़ती है तो हम आउटपुट या प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो GDP इंक्रीज नहीं होगा. तो GDP स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इवन इफ द डिमांड राइजेस, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक GDP विल रिमेन स्टैटिक, ओके. GDP में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. तो ये हमारे थे कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड, ओके. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट, तो एक और चीज़ है लॉस ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे भी है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था डेफिशिएंट डिमांड में, यहाँ पे भी लॉस ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास. कैसे? यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट किस चीज़ का होगा? वहाँ पे हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रह गया था, यहाँ पे हमारे पास है अनफुलफिल्ड डिमांड, ठीक है. तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर हमारे पास और रिसोर्सेज होते, इफ फर्दर मोर रिसोर्सेज वर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, द प्रोड्यूसर्स वुड बी एबल टू फुलफिल दिस डिमांड. ये जो अनफुलफिल्ड डिमांड है इसको सेटिस्फाई किया जा सकता था.
दैट मीन्स जो एक्सेस डिमांड है उसको कैप्चर या केटर किया जा सकता है. प्रोड्यूसर वुड easily be able to cater the excess demand if more resources were available in the economy. अगर resources ज़्यादा available होते तो प्रोडक्शन बढ़ा के इस excess demand को cater किया जा सकता था. ठीक है, तो excess demand है तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देते और डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो भी बिक जाता. तो दैट मीन्स ज़्यादा बिक पाता ना, सेल ज़्यादा होती, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता. लेकिन अब नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. हम सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर चुके हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है ना, तो वी हैव यूज ऑल द रिसोर्सेज. ओके, सो हम प्रोडक्शन और नहीं बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. ठीक है, तो हमारी जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते. ओके,